الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. السلام عليكم. Thank you, Professor. I would now request today's function's key speaker, Mr. Firoz Khan Sahab, to kindly come upon the dais. I would request Mr. Hafizullah Beg, one of the founder members of the organization and now the advisory committee member of MESCO Education Society, to welcome the gathering and introduce Mr. Firoz Khan Sir, today's key speaker. Distinguished Speaker of the Day, members of the Managing Committee of MESCO Education Society, Managing Committee members of schools, respective high schools, and principal and staff of other schools who have come over here and colleges, and my dear students. There is a hadith, a saying of the Holy Prophet, peace be upon him, which says that none of you can be a true believer unless you wish for your brother what you wish for yourself. None of you can achieve faith unless you wish for your brother what you wish for yourself. Now, I'm not a religious scholar, alim. So when I read this hadith, I understand it in the very simple terms as any layman reading it. And what I understand is that even if I'm a namazi, someone who prays 5 times a day, I observe all the fast 30 days in Ramadan and more so rest of the year. I give charity, I do all the good deeds. Still, I would not be considered a true believer if I did not wish for my brother what I wish for myself. This is a very, something which struck me very, as something which requires a very clean heart. Should we not? It's like, what do you mean by brother? Wish for your brother means you wish for your neighbor, your colleague, someone who lives with you in your building, somebody who shares, he travels with you. Each and every person who is other than you is your brother. In the sense of human brotherhood, everybody is a brother. So, what a true believer is required to do is to have such a clean heart that
he wishes for his brother what he wishes for himself. There's a saying, I mean, we have learned it all, that do unto others as you would have them do. Which is a very, makes a lot of sense to say. If you want somebody to do good to you, you should be good to him. It's a very practical and pragmatic, piece of advice. But this, to say that you should wish for your brother what you wish for yourself is going several stages ahead. And it is the ultimate in human brotherhood. Now, to give you an example, a simple example. All of us as parents, we all wish that our children do well in study. They do well, come up with good marks, they get the course of their choice, they get selected, they set up their lives very well, they have an excellent career. We wish them to have all this. Now what this hadith would require is that you wish the same for others. Right? And now when you wish for your children, you just don't say that, I wish my child gets this and he's the best in the class and his career is made. You just don't talk about it, you also struggle. You strive to make that happen. You make sure that he gets admission to the best of schools. He gets the best of tuition classes. The atmosphere at home you create whereby he would be, it would be conducive for him to study. So, you do all this. Now, why am I saying all this? The reason I'm saying this is because today we have among us someone who I can vouch for and say that he qualifies or he passes the test of the hadith to say that he wishes for his brother what he wishes for himself. I'm talking about our chief guest today, our chief speaker, Mr. Firoz Khan. If you see, he has lived in India, lived in Mumbai for over 60 years, a thorough Mumbaiker like you and I, and at some point of his life, he went abroad and he settled down there and did well for himself, did well for his family, and then he realized that what he's achieved is something very good, which he would want others, his brothers, to share. People from his community, people from his society, people from his country. He would want every Indian to take advantage of what facilities he has gone through and to benefit from his experience. So we have here Mr. Firoz Khan Sahab, who has spent his life dedicated to enriching us, to informing others of what all can be done. He's been there, he has set up a foundation for Canadians for Indians, and he's the president of the organization, and there in Canada, he has been helping students who go from here to get admission, to get jobs, to get rehabilitate themselves once they move to a new country. He's not only that, he's a prolific writer. He has over 2,000 articles in English, Hindi, Gujarati, mastery over these languages, and in fact, he is, I would say,
more than an individual, he is an institution in himself. And even this visit day, he has been to India, he has addressed a number of schools and colleges where he has got of time to interact with the students, and most of his time of his vacation he has spent doing this. Even today, he has been so nice to come over at our request, just because he felt that we have got a sizable people over here, number of students who would benefit if we were to come. So I think I will not take any more of your time. I would just ask you to come over and start this conversation. Thank you, Hafizullah sir. I would like to call upon Mr. Salman Kadame, Managing Committee Member of MESCO Education Society, to felicitate Mr. Firoz Khan sir with the token of appreciation. Thank you, Salman sir. Before we start, I would request everyone to kindly keep their mobiles on the silent mode. We are going to be benefited by this session, so I would request if you all have any doubts or queries, questions, please don't interrupt in between. The questionnaire session is after the lecture. Now I hand over to Mr. Firoz Khan sir to guide us on study and prospects of Canada. Thank you. Assalamualaikum. Ikra. Hello. The Holy Quran says Ikra. Hello. Means education. Bhagavad Gita says Tamso Ma Jyotirgamaya. Again, lead me from darkness to the light. The Holy Bible says, lead me to the light. I quoted quotations from 3 different holy books. Language is different. Message says education. So here I am on your invitation to say something or to speak to you about educational system, colleges, universities, courses of Canada. But my lecture will not be limited to only education. I will start with Canada as a country, because if you decide to come to Canada, you must know something about that country, that people of
country, the culture, the religion of that country, the laws and the implementation of the laws of that country where you are planning to come. If you permit me, I'll speak in Urdu or Hindi, so my message can go wide. हमारा हिंदुस्तान लंबाई या चौड़ाई में जितना बड़ा है, कनाडा उससे 3 गुना बड़ा है. Canada as a country is 3 times bigger than India. The population, यहाँ का population 130 करोड़ का है. 5 या 10 करोड़ यहाँ या वहाँ हो सकता है. हम लोग 3 गुना बड़ा होने के बावजूद हमारा पॉपुलेशन कितना है? आप लोग सोचेंगे जब 3 गुना बड़ी कंट्री है तो पॉपुलेशन भी 3 गुना ज़्यादा होगा. नहीं, कनाडा का टोटल पॉपुलेशन आज की तारीख में 4 करोड़ भी नहीं है. 4 करोड़ भी नहीं है. हम आज जब मैं आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ, इंडिया में जॉब्स की हालत क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है. और जब मैं आपसे खड़ा रह के बात कर रहा हूँ यहाँ पे कनाडा में आज की तारीख में 10 लाख नौकरियां खाली है. We do not have people to manage our offices, our factories, our shops. हमारे पास आदमी नहीं है to manage our economy. हम दुनिया की ओर देखते हैं कि कहीं से लोग हमारे मुल्क में रहने के लिए आए, यहाँ आए, काम करे, हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाए. कनाडा, this is the best time to come to Canada. Canada is an English country. मैं कनाडा के टोरंटो शहर में पिछले 22 सालों से रह रहा हूँ. इन 22 सालों में सैकड़ों हजारों इंडियंस को मैंने कनाडा में आते हुए देखा है. और मैं खुद एक सहाफ़ी हूँ. 40 सालों से मेरा अपना एक अखबार निकलता है टोरंटो से पिछले 18 सालों से. जितनी भी सोशल फंक्शंस वगैरह वहाँ पे होते हैं, एक चीज, एक बात खुल के सामने आ जाती है. इंडिया से आने वाले लोग वहाँ आने के बाद अक्सर एक गलती करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए. वहाँ आने के बाद गुजराती, उर्दू, हिंदी, मराठी वगैरह वगैरह लैंग्वेज बोलने वाले, समझने वाले
उन्हीं सर्कलों में वो घूमते रहते हैं। भाई यही सब अगर करना था तो अपना मुल्क छोड़ के क्यों आए? नए मुल्क में आए हो जिसकी लैंग्वेज इंग्लिश है, वो क्यों नहीं बोलते? वहाँ के गोरे काले लोग इतने अच्छे हैं, इतने कोऑपरेटिव है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। वो आपसे 2 कदम आगे चल के मिलना चाहते हैं और आप हो गए 2 कदम पीछे हल्के दूरी बनाए रखना चाहते। वाई? एक बात ध्यान में रखना, कनाडा अगर आते हो और जॉब या बिजनेस अगर करना का इरादा है तो आपकी अपनी कम्युनिटी जो वहाँ पे बची है वो आपको उतने जॉब या उतना बिजनेस नहीं देगी। Forget it. You get business from blacks and white. Now if you keep them, I mean yourself away from them, how are you going to get jobs and business? Sorry. If you meet me, I give you business. If you don't meet me, sorry, that's the door. We are very, very open-minded and outspoken people. We love people too much, but when we see the people keep distance, then we say, sorry, that's the door, go. So we are very strict about it. As far as laws are concerned, yes, कनाडा के लॉ बहुत ज़्यादा सख्त है और उनका इम्प्लीमेंटेशन उससे भी ज़्यादा सख्त है। यहाँ रेड सिग्नल तोड़ा, कांस्टेबल जिसको आप लोग हवालदार बोलते हो, 100, 200, 500 रुपये उसके हाथ में कमा लिया, आप चले गए। कनाडा में ये बात करने की सोचना भी मत। वहाँ हर 100 मीटर पर कैमरे लगे। पुलिस कांस्टेबल, जिसको हम लोग कांस्टेबल भी नहीं बोलते, ऑफिसर बोलते हैं, पुलिस ऑफिसर आपसे पैसे तो नहीं लेगा, लेकिन पुलिस ऑफिसर को ब्राइब करने के इल्जाम में मिनिमम 15 दिन की जेल हो सकती है, मिनिमम, और $500 का फाइन। इससे आप बच नहीं सकते। मैं जब टोरंटो से चला 3 हफ्ते पहले, इंडिया से आए हुए 40 स्टूडेंट, और ये इंटरनेशनल न्यूज बना है, इंडिया से आए हुए 40 स्टूडेंट को कनाडा ने एक साथ एक मुश्त वापस इंडिया भेजा, डिपोर्टेड। और ये स्टूडेंट जिंदगी भर कभी कनाडा नहीं आएंगे, नहीं आ सकते। क्या वजह थी? कनाडा आपको फ्रीडम देता है, अनलिमिटेड फ्रीडम, आप जो जी चाहे कर सकते हो, बट फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी अटैच है। अगर आप इरिस्पॉन्सिबल बिहेव करोगे, कनाडा बर्दाश्त नहीं करेगा। ये 40 स्टूडेंट
पार्किंग लॉट में एट मिडनाइट अपनी अपनी कारों में डीजे बजा रहे थे, बड़ी ऊंची आवाज में। एयरक्राफ्ट में रहने वाले जो लोग थे उन्होंने पुलिस को फोन किया, कहा समथिंग इज गोइंग ऑन हियर, कल सुबह हमको जॉब पे जाना है, हम सो नहीं सकते। इंडियन बॉर्न पुलिस ऑफिसर, इंडियन बॉर्न पुलिस ऑफिसर, वो वहाँ पे आया और वहाँ पे आके उसने उन स्टूडेंट्स को बहुत समझाया, समझाने की कोशिश की। आप लोग ये क्या कर रहे हो, आप लोग स्टूडेंट हो, अपना और अपने मुल्क का नाम क्यों खराब कर रहे हो। लेकिन सारे लोगों के दिमाग में बियर का नशा चला हुआ, कहाँ समझते बात। उनमें से 15 स्टूडेंट ने उस इंडिया बॉर्न पुलिस ऑफिसर पे अटैक कर दिया। वो पुलिस ऑफिसर अपनी जान बचाने के लिए अपनी गाड़ी में जाके बैठ गया और शीशे ऊपर कर दिए, उसकी जान को खतरा था। उसने चारों तरफ फोन करके ज्यादा पुलिस बुलाई। डिप्टी चीफ पुलिस ऑफिसर, जिसको आप लोग यहाँ पे डिप्टी चीफ पुलिस कमिश्नर कहते हैं, वो डिप्टी चीफ ऑफ पुलिस गोरा वो आया वहाँ पे, उसके साथ दर्जनों पुलिस आई। उसने आके कहा आई गिव यू 10 मिनट्स, वैकेट द प्लेस, जगह खाली करो। 11वीं मिनट पर आप सब लोगों को मैं अरेस्ट कर दूंगा। बात वही आई, बियर का नशा भरा हुआ था, नहीं मानी उसकी बात। 40 स्टूडेंट को एक साथ अरेस्ट किया गया। नेक्स्ट डे गोरा जज के सामने उनको पेश किया गया। अगर नशा उतर चुका था तो रो रहे थे, जज के सामने गिड़ा रहे थे। जज ने कहा नथिंग डूइंग, गो बैक। 40 स्टूडेंट एक साथ इंडिया डिपोर्ट। गोरे ऑफिसर ने एक ही जवाब दिया, यू आर नॉट इवन सिटीजन ऑफ माई कंट्री एंड यू अटैक माई पुलिस ऑफिसर, हाउ कैन आई टॉलरेट दैट? वी डोंट नीड यू, यू आर a lawless student, we don't need you, go back। अब ये सोचिए, एक स्टूडेंट को अगर पढ़ाई के लिए कनाडा भेजना है तो माँ बाप को 20 से 25 लाख रुपए का खर्च होता है। और ये 20 से 25 लाख रुपए का जो खर्च है, ये जो मिडिल क्लास के जो माँ बाप होते हैं वो कहीं ना कहीं से कर्ज लेकर के ही अपने बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए। अब आप सोचिए उन 40 बच्चों के माँ बाप के साथ क्या गुजरी होगी जब उनके बच्चे वापस आए। Why I told you this? आप लोगों से एक अपील करता हूं मैं, आप लोगों में से किसी को भी कनाडा आने का मौका मिले, बराए मेहरबानी
मेरी कंट्रीज के लॉ का रिस्पेक्ट करना, वो इंडिया नहीं है। मेरी कंट्रीज के लॉ का रिस्पेक्ट करोगे, तुमको यहाँ रखेंगे। अगर रिस्पेक्ट नहीं किया तो जिस दरवाजे से अंदर आए थे उसी दरवाजे से बाहर फेंके। तो प्लीज कनाडा आने का मन बनाते हो, वहाँ की कंट्रीज का लॉ, उसकी इज्जत करो। कनाडा की एजुकेशन सिस्टम और इंडिया की एजुकेशन सिस्टम में बहुत फर्क है। इंडिया की कॉलेजेस किसी न किसी यूनिवर्सिटी से जुड़ी होती है। कनाडा में यूनिवर्सिटीज अलग है, कॉलेजेस अलग है, उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं। कॉलेजेस में 9 महीने से लेके 3 साल तक पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्सेज चलते हैं। यूनिवर्सिटीज में डिग्रीज मिलती है। मैं अक्सर मेरे लेक्चर में कहता हूँ, कनाडा अगर आना हो तो वहाँ की किसी न किसी कॉलेज का पीजी डिप्लोमा, चाहे 1 साल का हो या 2 साल का हो या 3 साल का हो, उसी में एडमिशन लेना और कनाडा आना। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? जबकि मेरे पास व्हाट्सएप पे ऑन एन एवरेज 5-6 मैसेज आते हैं। माँ बाप बोलते हैं कि हमारे बेटे ने बैचलर कर दिया, वो मास्टर्स करने के लिए कनाडा आना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, कनाडा की कॉलेज में पीजी डिप्लोमा, उसकी 1 साल की फीस अगर 15,000 कैनेडियन डॉलर है, तो वही कोर्स आप यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाएंगे तो आपको 1 साल का 4 गुना, यानी कि 60,000 कैनेडियन डॉलर पे करना पड़ेगा। तो भाई मेरे, जब 15,000 डॉलर में आपका काम होता है कनाडा आने का, आई एम स्पेंडिंग 60,000 डॉलर। दूसरी बात, आपने पीजी डिप्लोमा कर लिया, अब आप वहीं रहने वाले हो, आपके पास बड़ी लंबी जिंदगी है, डिग्री तो आप कभी भी कर सकते हो ना भाई। आई एम स्पेंडिंग मनी इन द बिगिनिंग इटसेल्फ। कम पैसों में कनाडा आ जाओ ना। तो आई ऑलवेज एडवाइज कि पीजी डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन लो और कनाडा आओ। कनाडा आने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप अपने आप को बता देता है। आप चाहो नोट कर सकते हो। नंबर 1, सिलेक्ट द कोर्स। कनाडा में आके क्या पढ़ना चाहते हो, पहले ये डिसाइड करो। और ये बहुत अहम बात है। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, और आप बोलोगे मैं
कनाडा में साइंस का कोर्स पढ़ने के लिए आना चाहता हूँ, तो आपका कनाडा आने के लिए चांसेस से पहले ही 50% खत्म कर दिया आपने। क्योंकि हमारा जो वीज़ा ऑफिसर बैठा है गोरा, वो बोलेगा और वो सोचेगा तो यार ये तो आर्ट्स और कॉमर्स का स्टूडेंट है, ये क्या साइंस पढ़ने के लिए क्यों वहाँ पे आ रहा है? इसका मतलब ये पढ़ाई के लिए नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि ये वहाँ रहने के लिए आ रहा है। अब ये बात यहाँ पे इमिग्रेशन कंसल्टेंट की जो दुकानें खोल के बैठे हैं वो आप लोगों को नहीं पता, वो आप लोगों को नहीं पता। तो पहली बात, आप जिस लाइन से पढ़े हो उसी लाइन का कोई कोर्स कनाडा के किसी कॉलेज के अंदर सिलेक्ट करना कि मैंने ये कोर्स पढ़ना है। स्टेप नंबर 2, सिलेक्ट द कॉलेज। कैसे करोगे? एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने ये कोर्स पढ़ना है, गो टू गूगल पे टाइप करो आई वांट टू स्टडी दिस कोर्स ऑन इन कनाडा, विच आर द कॉलेजेस दैट रन्स दिस कोर्स। आपके सामने लिस्ट आती है, आप जो कोर्स पढ़ना चाहते हो वो कोर्स कनाडा में कौन कौन सी कॉलेज पढ़ा रही है उसकी लिस्ट आएगी। आपको 3 कॉलेज सिलेक्ट करनी है, 3 कॉलेज आपको सिलेक्ट करनी है। 3 कॉलेज सिलेक्ट करने के बाद टर्न बाय टर्न एक एक कॉलेज की वेबसाइट पे आपको जाना है और पता करना है कि वो कॉलेज कितने साल का वो कोर्स चलाती है, वो कॉलेज उसकी सालाना फीस कितनी है, ये आपको पता है। जब आपने वो पता कर लिया, स्टेप नंबर 3, अप्लाई फॉर एडमिशन। आपको इन वो 3 कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। आपने अप्लाई कर दिया, हो सकता है एक कॉलेज या 2 कॉलेज या तीनों कॉलेज आपको एडमिशन देने के लिए तैयार हो जाए। कॉलेज आपको एक लेटर भेजता है, लेटर ऑफ इंटेंट उसको बोलते हैं, मतलब लेटर ऑफ इंटेंशन। कॉलेज अपना इंटेंशन आपको बताता है कि यस वी आर रेडी टू गिव यू एडमिशन। उस लेटर ऑफ इंटेंट में पहले साल की फीस कितनी होगी वो लिखा होता है। याद रहे, आपको पहले साल की फीस पूरी एडवांस में भर देनी होगी। जब आपने 1 साल की फीस पे कर दी, कुछ दिनों बाद आपके पास एक और लेटर आएगा, उसको बोलते हैं लेटर ऑफ कंफर्मेशन। मतलब कॉलेज ने आपको एडमिशन दे दिया, दैट इज फॉर द लेटर ऑफ कंफर्मेशन। स्टेप नंबर 4, कनाडा की किसी भी बैंक में, यहाँ इंडिया के ब्रांच में आपको अपने नाम से, मतलब स्टूडेंट के नाम से 10,000 कैनेडियन डॉलर जमा करना है। उसको बोलते हैं GIC। GIC में
$10,000 अपना नाम का खाता खोल करके उसमें जमा करना। और याद रहे, ये आपके अपने पैसे हैं, कोई उसको हाथ नहीं लगाएगा। आप जब कनाडा आओगे तो ये तो हो नहीं सकता कि आप आज कनाडा आए और कल से आपको जॉब लग गया। हो सकता है महीना भी लग जाए, 2 महीने भी लग जाए। तो महीने 2 महीने में आप वहाँ पे रहने खाने पीने पढ़ाई का खर्च कैसे करोगे? तो इसीलिए वो $10,000 जो आपने अपने नाम का खाता खोल के यहाँ पे भरे कनाडा की बैंक में, कनाडा आने के बाद आपको हर महीना उसमें से $2,000 निकालने की परमिशन कनाडा देता है, ताकि आप अपने रहने खाने पीने का खर्च निकाल सकें। आपके पैसे हैं, आप ही को निकालना है। नेक्स्ट स्टेप, मेडिकल। आपको अपना मेडिकल करवाना है और मेडिकल किसी भी डॉक्टर से आप नहीं करा सकते। कनाडा ने जिस डॉक्टर को, इंडियन डॉक्टर को ऑथोराइज किया है, उसी से आपको मेडिकल करा दिया। किसी और डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। अब आपने ये सारे स्टेप जो ले लिए, आपका मेडिकल रिपोर्ट ये सब ले करके आपने कैनेडियन इसके बाद आपको एक SOP बनाना पड़ता है। SOP का मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पसेस। उसमें आप कनाडा गवर्नमेंट को बताएंगे कि आप कनाडा में आके क्यों पढ़ाई करना चाहते हैं। तो दैट SOP is the most important document। आपका कनाडा आने के स्टडी परमिट, स्टडी वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आपके SOP पे दावा बना है। ये सब कर्जा जोड़ने के बाद आपको न्यू दिल्ली में जो कैनेडियन एम्बेसी है, वहाँ पे स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करना है। 2 महीने 3 महीने में स्टडी वीजा आ गया नॉर्मली। अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ मैं, जो बताते हुए मुझे खुशी नहीं हुई, लेकिन हकीकत, और वो हकीकत को आपको बताना भी जरूरी है। पिछले 4 महीनों में सिर्फ इंडिया के 900 स्टूडेंट्स, आई रिपीट 900 स्टूडेंट इनका स्टडी वीजा रिजेक्ट किया। कॉलेज में एडमिशन ले दी, आपने फीस भर दी, आपने मेडिकल करा लिया, उसके बावजूद 900 बच्चों का, इंडियन बच्चों का स्टडी वीजा कैनेडियन एम्बेसी ने रिजेक्ट किया। What is the reason? क्यों रिजेक्ट? कैनेडियन एम्बेसी कभी भी आपको रियल रीजन नहीं बताएगा। सिर्फ
लाइन का रिप्लाई होता है। नंबर 1, you do not have enough money, you do not have enough fund. Number 1. Number 2, we think after completion of study you won't come back to India. ये दो ही रीजन आपके रिजेक्शन लेटर में लिखे होते हैं, दो में से कोई भी एक बात आपको बताता है। फर्स्ट टाइम रिजेक्शन 50% of your chances to come to Canada gone. अब आप अपील करोगे $120 भर के फर्स्ट रिजेक्शन के अगेंस्ट में अपील करते हो, फाइल रीसबमिट करते हो, बदकिस्मती से सेकेंड टाइम रिजेक्शन आता है। सेकेंड टाइम रिजेक्शन मीन्स 90 to 95% chances of your coming to Canada gone. यहाँ पे आकर कनाडा सिर्फ इंडिया के इतने सारे स्टूडेंट का वीजा क्यों रिजेक्ट करता है? कोई तो ठोस वजूहत होगी ना जो वो बताना नहीं चाहता। जो बात मैं बता रहा हूँ आपको एज ए साहब, जो बात आपको यहाँ का कोई भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट दुकानदार नहीं बताए, कनाडा गवर्नमेंट नहीं बताएगी, मैं आपको बताऊँ। आप लोग तो इंडिया में हो, मैं तो कनाडा। हमने वहाँ पे हमारे अखबारों में और हमारे टीवी में इंडिया रिलेटेड न्यूज़ पढ़े और देखे। आप लोगों को याद होगा सिर्फ 5 महीने पहले की बात है, इंडिया में 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 25 बोगस यूनिवर्सिटी पकड़ी गई। 25 बोगस यूनिवर्सिटी पकड़ी गई। किसने पकड़ी? अमेरिका ने पकड़ी, कनाडा ने पकड़ी, ऑस्ट्रेलिया ने पकड़ी, न्यूजीलैंड ने पकड़ी ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है उसका एक डिपार्टमेंट है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूनिवर्सिटीज को और कॉलेजेस को गवर्नमेंट के पैसे देता है, फंडिंग देता है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ऑफ इंडिया उसने 25 बोर्ड यूनिवर्सिटी को पकड़ा। एक कमरे में यूनिवर्सिटी चल रही है। दूसरी बात, इससे क्या होगा? इंडिया का एजुकेशन, इंडिया की डिग्री, डिप्लोमा, माफ करना, शक के घेरे में आ। किसकी डिग्री सही है और किसकी डिग्री डुप्लीकेट है, मैं कैसे पहचानूं? कनाडा गवर्नमेंट कैसे पहचानेगी? और यही वजह है वीजा ऑफिसर ने एक मुश्त रिजेक्ट खत्म। दूसरा रीजन बता रहा हूं, इमिग्रेशन कंसल्टेंट की दुकानें खोल के जो लोग बैठे हैं, अगर यहाँ ऑडियंस में बैठ कर मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं
जो सही बात है वो जरूर बता के जाओ। आज से कुछ दिन पहले कोरोना की बात बता रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट इंडिया से आए हुए जरूरत से ज्यादा स्पीड में गाड़ियां चला रहे थे। पुलिस ऑफिसर जो वहां से गुजर रहा था उसने वो चीज को नोट किया। उसने गाड़ी उनके सामने लाके उनकी गाड़ियों को फुटपाथ पे लगाया। एक स्टूडेंट अपने अपनी गाड़ियों में से बाहर आया। दो सिंपल क्वेश्चन। What's your name? Where do you live? और वो 8 बच्चे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट बन के आए थे जवाब नहीं दे सके। दो सिंपल क्वेश्चन। फिर जब उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया, थोड़ा बहुत प्रेशर डाला गया उन पे, तब उन्होंने उगल दिया कि साहब कनाडा में आने के लिए जो स्पेशल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो देनी पड़ती है, जिसको IELTS बोलते हैं, वो टेस्ट हमने तो दी ही नहीं। हमारी जगह पे कोई और डमी कैंडिडेट बैठा था, उसने वो टेस्ट दी और हमारे नाम का सर्टिफिकेट आया। तो ये है यहाँ के इमिग्रेशन कंसल्टेंट दुकानदारों के गोरख धंधे। आपके फ्यूचर से खिलवाड़ कर रहे हैं, याद रहे। मेरे यहाँ आने के बाद और यहाँ आने से पहले भी सूरत के पास नवसारी नाम का एक छोटा सा शहर है। वहाँ पे बहुत ही नामी गिरामी इमिग्रेशन कंसल्टेंट है और वो पूरी IELTS के क्लासेस भी चलाता है। 15,000 रुपये फीस लेता है। कनाडा में अगर आना है तो IELTS का लेटेस्ट स्कोर मिनिमम 7 बैंड है, मतलब 70%। अगर उससे आधा भी कम हुआ 0.5 तो आप नहीं आ सकते। 7 बैंड लाना कंपल्सरी कर दिया। ये नवसारी वाला टीचर जिसके 5 या 6 बैंड आते हैं, उनको बोलता है कोई चिंता नहीं, 1 लाख रुपया दे दो, आपका 6 या 7 बैंड कर देते हैं। 1 बैंड बढ़ाने के लिए 1 लाख रुपया देता है, 1 लाख। और आप लोगों को क्या लगा? तो जो कैनेडियन वीजा ऑफिसर गोरा बैठा है वहाँ पे, वो बेवकूफ है, उसको पता नहीं है इंडिया में क्या हो रहा है। और यही वजह है 900 स्टूडेंट्स का स्टडी वीजा रिजेक्ट। यही वजह। तो प्लीज अगर आना है गलत रास्ता अख्तियार मत करना, कभी भी पकड़े जाओ। और जब भी पकड़े गए, चाहे वो 1 साल हो या 2 साल हो, आपको डिपोर्ट कर देगा कनाडा। क्योंकि कनाडा के लॉज आर वेरी स्ट्रिक्ट, देयर इज नो मर्सी, नो मर्सी। कनाडा और वहाँ के लोग, चाहे वो वाइट हो या ब्लैक हो, दे आर वेरी गुड पीपल, बिलीव मी। बहुत प्यार मोहब्बत से आपके साथ पेश आने वाले लोग हैं। लेकिन
इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ से आने वाले लोग एक गलती करते हैं। सालों से बोलता आ रहा हूँ मैं, ये गलती मत करो, नहीं, नो इम्प्रूवमेंट। क्या गलती करते? भाई आप कनाडा आ रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि कनाडा इंग्लिश कंट्री है। वहाँ तो सुबह से शाम तक आपको अंग्रेजी बोलना है। अब आप वहाँ आने के बाद उर्दू, हिंदी, मराठी, गुजराती बोलोगे तो फिर कुएं का मेंढक कुएं में ही तैरते रहो, फिर आपको दुनिया में तैरने की जरूरत नहीं है। और फिर आप अगर अपनी ही कम्युनिटी की सर्कल में घूमते रहे तो जॉब और बिजनेस, अच्छा जॉब और अच्छा बिजनेस मिलने के चांसेस आपके जीरो हो, क्योंकि जॉब और बिजनेस वो गोरे और कानों के पास है, हम जैसे लोगों के पास नहीं। तो अगर बिजनेस करना है, अच्छा जॉब चाहिए, अच्छी तनख्वाह वाला जॉब चाहिए, तो आपको गोरी कंपनी में ही जाना पड़ेगा। इंडिया का बिजनेसमैन, आई एम सॉरी टू से, वो आपको कभी इतनी तनख्वाह नहीं देगा। फॉरगेट इट, वो तो खुद कमाने के लिए आया, वो आपको क्यों कमाने देगा? दैट्स द मेंटालिटी। आपको बताऊं, टोरंटो शहर जहां मैं रहता हूं, ओंटारियो प्रोविंस कहलाता है। हर प्रोविंस मिनिमम वेज यानी कि मिनिमम तनख्वाह तय करता है, उससे कम तनख्वाह कोई दे नहीं सकता। ओंटारियो में आज की तारीख में $15 पर आवर ये मिनिमम वेज चल रहा है। $15 पर आवर। मैं आपको बताऊं, आप किसी भी इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी की दुकान में या ऑफिस में चले जाएंगे, अरे आपको $10 घंटे का मिला तो आप नसीबदार हैं। $15 देने की बात तो दूर, $8 और $10 में लोगों से 12-12 घंटा काम करवा रहे हैं। ये है हमारे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश। तो आप किससे उम्मीद करते हैं? दूसरी बात यार, अगर आपको उर्दू, हिंदी, मराठी, गुजराती ही बोलना था, ऐसे लोग बोलने वाले लोगों के अंदर ही रहना था, तो आप इंडिया में छोड़ा क्यों? आप भाई इंडिया में ही रहते ना, फिर इंग्लिश कंट्री में क्यों आए? मेरी कंट्री में आओगे और मेरी जुबान नहीं बोलोगे, मैं कैसे बता? मेरे घर में आओगे आप और मुझसे ही अलग थलग रहोगे, कैसे बता सकते? तो प्लीज कनाडा आने का अगर मन बना रहे हो तो आज से ही अंग्रेजी में बातचीत करने की प्रैक्टिस शुरू करो। बाकी वहां आने के बाद में आपको डिफिकल्टी ना पड़े। याद रहे, आप इंग्लिश कंट्री में आ रहे। अब मैं आपको बताऊं, 2016 में मैंने वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसका नाम कैनेडियन फॉर इंडियंस, इस नाम की ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे बनाई। सिर्फ 2 मकसद,
मुझे न दाएं देखना है न बाएं देखना है, नाक की सीध में देखना है। और क्या मेरा मकसद है, क्या दो मकसद है। इंडिया से मैक्सिमम लोगों को, स्टूडेंट्स को कनाडा बुलाना है, मकसद नंबर 1। मकसद नंबर 2, उनको यहाँ पे इस कंट्री में बसाना है। मेरी इस ऑर्गेनाइजेशन में अल्हम्दुलिल्लाह वेल एजुकेटेड लोग हैं, रिटायर्ड जज, रिटायर्ड लॉयर, रिटायर्ड डॉक्टर, रिटायर्ड प्रोफेसर, रिटायर्ड CA एंड रिटायर्ड टॉप क्लास गवर्नमेंट ऑफिसर। जब मैंने अपने घर में मीटिंग बुलाई और उन लोगों को बुलाया तो मैंने उन लोगों से एक ही कहा कि ये दो ही मकसद के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन में बनाना चाहता हूँ और आप लोगों से ताल्लुक चाहता हूँ। हर एक ने कहा 90। 2016 में बनी। मैं हर साल कनाडा से यहाँ आता हूँ। इस साल कोरोना की वजह से 3 साल के बाद आया हूँ। 2018 में जब मैं आया था, महाराष्ट्र कॉलेज, अकबर कीरभाई कॉलेज, रानी कॉलेज, कलसेकर कॉलेज, यहाँ पे मेरे लेक्चर हुए। मैंने लोगों को दावत दी थी कनाडा में। अल्हम्दुलिल्लाह इन 3 सालों में सैकड़ों स्टूडेंट कनाडा पढ़ने के लिए आए। That's the impact. That's the impact. अब ये ऑर्गेनाइजेशन कनाडा में क्या करता है? नंबर 1, कोई भी लड़का या लड़की या उसका माँ बाप अगर किसी बच्चे का स्टडी वीज़ा मिल जाता है, स्टडी वीज़ा मिल जाने के बाद मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज आता है या फ़ोन आता है, सर मेरा बेटा या बेटी फलाना शहर में फला कॉलेज में एडमिशन लिया है, फला तारीख को कनाडा आ रहा है। हम तो किसी को वहाँ जानते नहीं। हमारे बच्चे का रहने खाने पीने का इंतज़ाम, हमें उसकी बहुत फिक्र है। कोई फिक्र मत नहीं। दर्जनों के हिसाब से अब तक इंडियन स्टूडेंट्स का रहने खाने पीने का इंतज़ाम हम लोगों ने कर दिया। हम लोगों ने वो सारा इंतज़ाम बच्चों के आने से पहले ही कर दिया और ये काम आज भी जारी है। दूसरी बात, मेरे घर के पास में एक मॉल है, अल्बियन मॉल। उसके फूड कोर्ट में मेरी एक टेबल है जहाँ जाके मैं रोज 4 से 7 बजे तक बैठता हूँ। उस मॉल का मैनेजर 4 से 7 के बीच उस टेबल कुर्सी पे किसी को बैठने नहीं देता और जो भी बैठने की कोशिश करता है, सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे आता है और उसको भाई से बोलता है, सर दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज ओनली फॉर मिस्टर खैर। तो मेरा नाम खान है, उनको खान बोल नहीं सकते, KHAN में खैर। मैंने डजन के हिसाब से अपनी हथेली में चेहरा छुपा के लड़के और लड़कियों को रोते हुए देखा
क्यों? जब वो छोटी उम्र में वहाँ आते हैं, माँ बाप भाई बहन दोस्त बिरादर कोई नहीं होता, किससे बात करेंगे? किससे बात करेंगे? किससे अपना दुख अपनी तकलीफ किसके साथ में साझा करेंगे? कोई नहीं है। मैं खुद उठ के उनके पास जाता, उनके सर पे या कंधे पे हाथ रख के कहता, मुझे दादा समझो या नाना समझो, लेकिन जो भी तुम्हारी तकलीफ है मैं मुझे बताओ। अपना विजिटिंग कार्ड उसको देता, उस पर मोबाइल नंबर मेरा लिखा है, उसको बोलता हूँ मैं 24/7 जब जी चाहे जितनी देर जी चाहे मेरे से बात करें। वाई? क्यों करता हूँ? बिकॉज he is a child from my community, he is a child from my country, and I don't want him or her to go into depression. I don't want to go him or her into depression. याद रहे कनाडा में डिप्रेशन इज नंबर 1 बीमारी, 1 नंबर की बीमारी चल रही है कनाडा में। बड़े बड़े मकान है, बेटा बहू बेटी सब सुबह काम पे चले जाते हैं, बड़े बुजुर्ग 4 दीवारी में अकेले बन जाते, किससे बात करेंगे? कोई बात करने वाला नहीं। तो मैं नहीं चाहता कि वो बच्चे डिप्रेशन में जाए। नंबर 3, कनाडा हर इंटरनेशनल स्टूडेंट को हफ्ते में 20 घंटा काम करने की परमिशन देता है, ताकि आप काम करो, कमाओ, अपना पढ़ाई लिखाई खाने पीने का खर्च खुद निकालो। माँ बाप के पास से पैसे मंगाने की जरूरत नहीं है। और याद रहे, एक स्टूडेंट को 1 महीने का खाने पीने रहने का खर्च $1200 से $1400 होता है, मतलब इंडिया का ₹2.25 लाख 1 महीने का। अरे आपके माँ बाप ने तो वैसे ही कर्ज करके आपको भेजा है, फिर आप हर महीना $2.25 लाख कैसे मंगाओगे उनके पास से? इम्पॉसिबल है। आई डोंट थिंक। और जो पैसे वाले हैं वो भी $2.25 लाख रुपया का खर्च नहीं करेंगे भाई। तो हम लोग और हमारी ऑर्गेनाइजेशन, जो स्टूडेंट काम करना चाहते हैं उनको जॉब्स पर भी लगा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 210 बच्चों को नौकरियों पे लगा चुके, 210। और मैं जब जाके वहाँ पे बैठता हूँ मॉल में, ऑन एन एवरेज 4 से 5 लड़के लड़कियाँ अपना बायोडेटा या रिज्यूमे लेके मेरे पास आते हैं, अंकल हमको भी जॉब चाहिए। और ये सारा काम मैं और मेरे साथी मिल के वहाँ पे करते हैं। सभी आप बेशक कनाडा आए, जरूर आए, और वहाँ आने के बाद हमारी कंट्री के कानून का इज्जत करें, कानून के तहत रहे, कोई आपको उंगली नहीं लगाता। तो मैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से और मेरी अपनी ओर से एक 80 साल का नौजवान आपको बोलता है कनाडा आइए, वेलकम टू कनाडा। We are here and there to welcome you at any time
I request you, I appeal to you, आपका सुनहरा मुस्तकबिल आपका इंतजार कर रहा है। माँ बाप से एक बात मैं जरूर कहूँगा, बच्चों को एवं लड़कियों को जरूर भेजें। लड़कियों के अलग रहाइश का इंतजाम किया है हमने, आपको लड़कियों के लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वी आर देयर, so please take advantage of our services. Please अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाइए and please come to Canada. By saying this, I thank the organizers of today's meeting for inviting me, for giving me an opportunity to talk to you. Thank you very much. Now, as always, मेरे लेक्चर के बाद मैं 10 सवाल लेता हूँ। ऑडियंस में से किसी को अगर कोई सवाल पूछना है 10, लेकिन याद रहे जो सवाल आप पूछेंगे वो सवाल मैंने अपनी स्पीच में जो मालूमात दी उसी से मुताल्लिक होने चाहिए। आपके पर्सनल सवालों का जवाब मैं नहीं दूंगा। अगर कोई बोलता है मुझे के साथ मेरे बेटे का स्टडी वीजा रिजेक्ट हो गया है, मैं क्या करूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम नॉट ए गवर्नमेंट ऑफिसर। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर बोल रहा हूँ, किसी को नोट करना हो नोट कर ले। मेरे कनाडा जाने के बाद आप व्हाट्सएप पे अपना कोई भी सवाल मुझसे पूछ सकते हो। अगर मुझसे बात करनी है व्हाट्सएप पे तो आपको इंडिया के रात के 8 बजे के बाद मुझे कॉल करना है। यहाँ के रात के 8 बजे का मतलब होता है मेरे यहाँ पे सुबह के 10:30 बजे। नाश्ता पानी करके फ्रेश होके फोन लेके बैठता हूँ मैं, ताकि लोगों के सवालों का जवाब दे सकूं। तो याद रहे रात 8 बजे के बाद ही मुझसे बात करना। अब मैं अपना नंबर नोट कर रहा था, +1, ये 1 नंबर जो है ये हमारा कंट्री कोड है। +1 416 473 473 3854 3854 मतलब 416 473 3854। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। रात हमारे यहाँ के रात 1:30 बजे 2 बजे 2:30 बजे प्लीज बराए मेहरबानी कॉल मत करना। नींद में से मत उठाना यार, मुझे भी तो नींद की जरूरत है, क्योंकि यहाँ के लोगों को जब टाइम का पता नहीं होता है तो रात में 1:30 बजे 2 बजे 2:30 बजे फोन करते। अरे मेरे भाई रात का 1:30 बज रहा है। तो प्लीज once again, thank you very much. किसी को सवाल करना है यहाँ आके अपना सवाल करें, मैं जवाब देने के लिए तैयार।
Volunteers will pass the mic to you all. If you all have any questions, please feel free to ask. Assalamualaikum sir. सर मेरी बेसिक कुछ नाम बोलना है नहीं, अपना सवाल पूछिए। सर मेरी बेसिक क्वेश्चन था कि पीजी डिप्लोमा कोर्स और नॉर्मल यूनिवर्सिटी कोर्स के बीच में थोड़ा सा और डिफरेंस आप बता सकते हो। एक तो फीस का समझना है और उसमें एजुकेशन के हिसाब से मतलब कुछ अगर आप इलेबोरेट कर सकते हो तो। इनका सवाल है कि पीजीटी कोर्स और टीजीटी कोर्स जो है उसमें उनको फीस का डिफरेंस तो समझ में आया, इन एजुकेशन अगर कुछ डिफरेंस है तो वो आपसे गाइडेंस मांग रहे हैं। फीस का डिफरेंस तो हमें समझ में कोर्सेज में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ये एक क्रेज है इंडिया में कि मैंने ग्रेजुएट कर लिया तो मुझे मास्टर ही करना। नो, दैट्स रॉन्ग। अगर आपका इंटेंशन कनाडा में आके बचने का है तो जैसे मैंने अपने स्पीच में कहा कि पीजी डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन ले लो, डिग्री तो वहाँ रहने के बाद आप कभी भी कर सकते हो। तो डोंट गो फॉर मास्टर्स एंड ऑल दैट थिंग। नो, इट इज अ वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम। एक बात और बताना मैं भूल गया था अपने स्पीच में, और में से किसी ने पूछा भी नहीं। कनाडा में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई ऐसा इंडिविजुअल नहीं है जो आपको कनाडा में पढ़ाई करने के लिए आने के लिए फिनेंशियल हेल्प या लोन देने वाला कोई अदालत नहीं। यस, देयर आर 50 ऑर्गेनाइजेशन जो आपको कनाडा में पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप देती है, लेकिन अमूमन ये स्कॉलरशिप मास्टर्स प्रोग्राम और पीएचडी के लिए ही अक्सर होती है। इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे प्रोग्रामों के लिए नहीं होती, हाँ होती है, बट यू हैव टू गो फॉर गूगल सर्च। आप गूगल में खाली इतना टाइप करें, स्कॉलरशिप अवेलेबल फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड 50 list of 50 organizations come on your click. Volunteers, please pass the mic. सर, जैसे कि इंडिया में दो तरह की यूनिवर्सिटी होती है, गवर्नमेंट एडेड होती है, प्राइवेट होती है। तो अगर कोई बंदा जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन किया है तो क्या वो अप्लाई कर सकता है कनाडा में फर्दर स्टडीज के लिए? सर, इनका सवाल है कि इंडिया में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जो होता है, तो अगर किसी बंदे ने गवर्नमेंट सेक्टर से ग्रेजुएशन किया है, रिपीट कीजिए सर। आई वुड रिक्वेस्ट अगर आप यहाँ आके सवाल हमारे इंडिया में दो तरह की कॉलेजेस होती है, एक सेल्फ फाइनेंस होती है और एक गवर्नमेंट एडेड होती है। तो अगर कोई बंदा अगर प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस से ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, सेल्फ फाइनेंस से अगर वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, जिसको ऑटोनोमियल भी कहते हैं या प्राइवेट फर्दर स्टडीज के लिए, आपने यहाँ से गवर्नमेंट एडेड, गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है
या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, सेल्फ फंडेड कॉलेज से पढ़ाई की है, आप वहाँ पे पढ़ाई के लिए आ सकते हैं। देयर इज नो बार। एक बात मैं और क्लैरिफाई कर दूँ, यहाँ के इमिग्रेशन कंसल्टेंट एजेंट आपको कहते हैं आप 12वीं पास हो गए, अब आप कनाडा जा सकते हैं, यस यू कैन कम। लेकिन मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ, यहाँ से ग्रेजुएशन पास करने के बाद ही कनाडा आए। वाई? जो 12वीं पास होकर वहाँ पे आते हैं, उनको उनकी पढ़ाई जब खत्म हो जाती है और जब पीआर यानी कि परमानेंट रेसिडेंट मिलने का जब वक्त आता है, तो उस टाइम पे उनको बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। उनको पीआर मिलने में भी बहुत टाइम लगता है, क्योंकि पीआर देने का एक जो प्रोसेस है, तो कनाडा में आप जब आए थे उस वक्त आपकी क्वालिफिकेशन क्या थी, आपका एजुकेशन क्या था, उसके बेसिस पर आपका पीआर का केस आगे बढ़ता है, ना कि आपकी कनाडा की पढ़ाई की कंप्लीट करने के बाद। तो बड़ाई मेहरबानी, ग्रेजुएशन करने के बाद आओगे तो पीआर और सिटीजनशिप मिलने में आसानी हो जाएगी। 12वीं पास करके यहाँ के जो लोग भेज रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लेकिन जब जिन लोगों को पीआर नहीं मिलता, वो फिर आके हम जैसे लोगों के पास रोते हैं, हम भी कुछ नहीं कर सकते। We can't do anything because it is a government step. तो बड़ाई मेहरबानी, ग्रेजुएशन के बाद वहाँ पे आना। दूसरी बात, बहुत अहम बात बताने जा रहा हूँ। क्या होता है, यहाँ के जो एजेंट होते हैं, उनका मकसद तो सिर्फ एक ही होता है, पैसा। वो तो सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं, और इसीलिए 12वीं बच्चे को पुश करके वो भेज देना और पैसे ले लेना लाखों रुपया, वही उनका मकसद होता है। क्या करते हैं ये लोग? कनाडा बहुत बड़ा है, बहुत बड़े छोटे बड़े शहर है, जिसको हम महाराष्ट्र में गुजरात में तालुका प्लेस बोलते हैं। उन तालुका प्लेस के जैसे छोटे छोटे शहर है वहाँ पे, उनमें भी कॉलेजेस है। ये लोग क्या करते हैं, ऐसे छोटे शहरों की कॉलेजेस में बच्चों को पढ़ाई के लिए भेज देते हैं। हमारा काम होगा, हमने आपको कनाडा भेज दिया। अब जब वो बच्चा वहाँ पे जाता है, तो छोटे शहरों में ना इंडस्ट्री है ना बिजनेस है, जॉब कहाँ से लाओगे? जॉब कहाँ से लाओगे जब इंडस्ट्री नहीं है, बिजनेस नहीं है? पता चला उन छोटे शहरों में जो बच्चों को भेज दिया, उन बच्चे 3-3, 4-4 दिन तक भूखे रहते हैं। मैंने नजरों से देखा है। दे आर हंग्री। माँ बाप के पास से पैसे मंगा नहीं सकते, जॉब है ही नहीं, जीना तो है, कैसे जीना? तो ये बातों को ध्यान में रखना। अगर आप किसी एजेंट की सर्विस लेते हो, लीजिए, लेकिन उस एजेंट को सवाल करने का हक आपका है कि भैया तू मेरे बेटे या बेटी को जिस शहर में भेजता है, उस शहर के बारे में भी मालूमात दे कि वहाँ पे कितनी बिजनेस और कितनी इंडस्ट्री और कितने जॉब अवेलेबल है। यह आपका हक है, बिकॉज यू आर पेइंग इट, ही इज नॉट गोइंग टू टेल यू। वो खुद ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? सीधा हिसाब है भाई,
थोड़ा घास से जारी करेगा तो खाएगा क्या? तो उसको तो घास प्यारी है ना, उसको आपका मुस्तकबिल प्यारा नहीं है। थैंक यू। I would request you to please come on the dais and ask your question. अस्सलामुअलैकुम सर, मेरा तो सवाल है, आपने जो कॉलेजेस के बारे में बताया कि अप्लाई करना चाहिए फॉर पीजी डिप्लोमा अप्लाई करना चाहिए। अब वो कॉलेजेस के खाली एप्लीकेशन के फीस 150 to 200 कैनेडियन डॉलर जाते हैं। एप्लीकेशन फीस जो है उनकी वो 100 to 150 कैनेडियन डॉलर है, रफली अराउंड 8,500 इंडिया में। तो उस पर कोई फी वेबल है? ये होता है क्या? How much should be the minimum spend for application? Minimum spend कितना करना चाहिए एप्लीकेशन पे? और एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा, आज से 4-5 महीने पहले की बात है, जिन बच्चों के स्टडी वीजा रिजेक्ट हुए थे और जिन्होंने कॉलेज की फीस भर दी थी, कॉलेज वालों ने उनकी फीस रिफंड करने से मना कर दिया। कॉलेज वालों ने कहा हमने अपनी एक सीट आपको बेची, ये तो बिजनेस है। अब अगर आपको स्टडी वीजा नहीं मिला गवर्नमेंट का, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। Why should we suffer? अल्टीमेटली मेरे दूसरे गोरे काले जो साहबी है, उनके साथ में मिल करके हमने हमारी गवर्नमेंट से, कॉलेज से डिस्कशन किया। कॉलेज मानने को तैयार नहीं की, लेकिन अल्टीमेटली गवर्नमेंट का प्रेशर आया और उन लोगों ने पार्शियल से लेकर के फुल कॉलेज फीस बच्चों को वापस की। But it is not possible for every time. एडमिशन अलग है, कॉलेज देता है, स्टडी वीजा गवर्नमेंट देती है, दोनों अलग अलग है। Any further questions? Please come on the dais. Hello. Assalamu alaikum everyone. First of all, thank you very much for organizing this event and to help us know about how the Canada is and all. So, I will give you a brief because I have also researched a lot about moving to Canada and all. So, it's a general question or maybe a personal question. So, giving a background, I have completed my BCom and MCom in 2021, and from that onwards I have started researching about this. So, I am from commerce background and I have did MCom in accounting. So, after BCom, I have started my accounting job. Okay. So, currently I am in a good MNC company. So, I look forward for my career in accounting. So, to move abroad in Canada, I am pursuing CPA course. So that because since pandemic, exams are being conducted in India, so we can give those exams. So
So my question is, I want to move there. So I've just started the course. So it's going to take 2 years approx maximum to complete that. So should I complete that course and come to Canada, because the course will give me CA credentials of Canada itself. Being in India, I will be a chartered accountant of Canada. This is my question. Should I complete it and wait for 2 years and then go? Or the phase 2 is, should I apply for study visa right now and complete my course there, which can be done from both the places, from India as well as Canada. Thank you. In your case, I will advise you better complete your course here and then come to Canada. Because what happens? If you complete the Canadian course in India and then you come there, you might be employed immediately without even Canadian credentials. So it is better you complete that course of 2 years and then In that case, to get an entry into Canada, we need something legal status. So should the work permit be the legal status or the student visa? Okay, so you mean after completing that course, I should pursue a PG course and then complete. Thank you so much. Any further questions? Sir, as you mentioned about the visa application process, so my query was that when we'll have that 1v1 interview with the visa application officer, as you said, so should we keep in mind some of the questions, like we have to prepare beforehand for that, or do we need any extra efforts that we are going to put in? Or we just have to go and we'll be asking. जब आप स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करते हो ना, और अगर आपका इंटरव्यू आता है, तो इंटरव्यू के दौरान वीजा ऑफिसर क्या सवाल करेगा ये आपको भी पता है. तो हाउ कैन यू प्रिपेयर योरसेल्फ? जब आपको सवाल पता नहीं कि क्या सवाल पूछो, तो ऑन द स्पॉट जो भी वो सवाल करेगा उसका जो भी आप जवाब दोगे ना, तो बी ट्रूथफुल इन योर. अगर तो आप ये समझोगे कि नहीं मैंने कनाडा जाना है, अगर मैंने थोड़ा बहुत झूठ भी बोल दिया ऑफिसर के पास, तो क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो जो कैनेडियन वीजा ऑफिसर होते हैं, दे आर फुल्ली ट्रेन. कौन कितना सच या झूठ बोलता है वो फौरन समझ जाते हैं. तो आप पहले से ऑफिसर होकर जाएंगे, जब आपके सामने जब सवाल आएगा उसी वक्त आपको जवाब. Any questions from the girls' side? Ma'am, I would request you to please come on the dais and ask the question. So my question is there any age limit or marital status for applying for student visa? She wants to ask, is there any age limit if you want to apply for the studies further? Yes. Age limit
दो चीजें बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। एज ए स्टूडेंट you can come to Canada provided your age is not more than 25. Number two, the study gap, आपको पढ़ाई छोड़े हुए आखिरी पढ़ाई आपने कब की थी, that is called study gap. According to Canadian law, 3 से 5 साल तक का स्टडी गैप इज परमिटेड। 5 साल से ज़्यादा का स्टडी गैप होगा, 25 साल से ज़्यादा की उम्र होगी, ऑलमोस्ट 80% यू कैनॉट कम एज स्टूडेंट। वहाँ आने के दूसरे और भी रास्ते हैं, लेकिन मैं स्टूडेंट की ही बात करूँगा। Any questions? Yes, ma'am, please come on the dais. सर, अगर बच्चे ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और उसको कोई डिप्लोमा कोर्स के लिए भेजना है, तो कोई रिलायबल सोर्स होगा, कोई कंसल्टेंसी बताए कि दिस इज द गुड कॉलेज, हम सोर्स होगा कि इसको रैंडमली ऐसे ही कुछ कर रहा है। कोई भी कोर्स रैंडमली सिलेक्ट नहीं कर सकते। आपने जिस लाइन में स्टडी की है उसी लाइन से रिलेटेड कोर्स अगर वहाँ पे है तो बेहतर होगा आप उसी कोर्स के लिए जाइए। मैंने अपनी स्पीच में कहा था, आज का स्टूडेंट साइंस का कोर्स करना चाहता है, उसको स्टडी वीजा नहीं मिलेगा यहाँ तक, क्योंकि वीजा ऑफिसर के मन में डाउट हो जाएगा कि भैया आज का स्टूडेंट साइंस में क्यों जाना चाहता है। तो बी केयरफुल अबाउट इट। सर, मेरा सवाल है कि अगर बच्चा कॉमर्स का ही है, उसको रिलेटेड ही कोई कोर्स है, बट कोई रिलायबल कंसल्टेंसी होगी जो लगे कि ये सही है, यहाँ से हम वी कैन गो अबाउट। कनाडा के सारी कॉलेजेस रिलायबल है। कोई भी कॉलेज वहाँ पे आपको बोगस या डुप्लीकेट कॉलेज नहीं मिलेगी, और वो जो भी कोर्स पढ़ाएगी वो कोर्स गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की एजुकेशन मिनिस्ट्री का अप्रूव्ड कोर्स होगा, तो आपको वही कोर्स करना है। अच्छा, अब अगर आपने बीकॉम किया है और कॉमर्स की लाइन से कोर्सेज वहाँ आके पढ़ना चाहते हैं, तो फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड कि आपको वहाँ कौन सा कोर्स करना है। अगर ये भी जानना चाहते हैं कि भाई मैंने बीकॉम कर लिया है और कनाडा आने के बाद मैं कौन सा मैं कोर्स करूँ, तो आप गूगल पे टाइप करें which are the courses available for already BCom pass from India, और वो लिस्ट आती है आपके सामने, वो लिस्ट में बाद में थैंक यू सर, आई गॉट द आंसर। 10 questions हो गए सर बोल रहे हैं। Okay, the last question of the day. As I am looking forward to studying abroad, SOP is very important. What is the main purpose of writing SOP and what should be included in it? You have given us the brief information about it. Can you please explain that in detail? पहले ही आप अपना SOP जो बनाओगे बहुत सोच समझ के SOP बनाना, क्योंकि आपका स्टडी वीजा 80% आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पसेस पे होगा, और स्टेटमेंट ऑफ पर्पसेस में आपको बताना पड़ता है कि आप कनाडा में ही क्यों पढ़ने के लिए आना चाहते हैं। अगर स्टडी वीजा और हमारा जो वीजा ऑफिसर है उसको अगर 5% भी आपके SOP पे डाउट हो गया, वो आपको स्टडी वीजा नहीं। So you have to be very, very extra
careful for writing your essay. The really last question for the day that ma'am wants to ask, कि डिप्लोमा कोर्सेज जो होते हैं वो कॉलेजेस से होते हैं या फिर जो यूनिवर्सिटी कोर्सेज होते हैं? She is asking about the university and colleges. You were asking, I mean, you were saying that a child who wants to go there should pursue PGD, right? So PGD is generally affiliated to colleges and masters is affiliated to university. That's what you're trying to say? So PGD is through colleges. Okay. And just one last query. Which are the banks or maybe organizations which provide interest-free loan? Because that's the query I got it from the students. मैंने पहले ही इसका जवाब दे दिया। No interest-free loan for कनाडा में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो आपको इंटरेस्ट फ्री की बात कर रहे हो। इंटरेस्ट पे लोन देने वाला तो हेल्प करने वाला कोई नहीं। ओके। आपको यहाँ पे इंडिया के नेशनलाइज्ड बैंक they give you 80% loan once you get study visa. Once you get study visa, you get 80% loan from nationalized bank. And what I know, I don't know I'm right or wrong, यहाँ पे शायद इंडिया में मौलाना आजाद फाउंडेशन है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है शायद। तो मौलाना आजाद फाउंडेशन ने अभी शुरू किया है स्टडी लोन देने और स्टडी लोन देने आप वहाँ पे अप्लाई करें। Thank you so much. One question. Last. Hello sir. So I have applied to Humber College in Toronto for a PGDM course in the program Human Resources Management. So I wanted to know, after it's a 1-year course. So after that I will get a 1-year PG WP, right? So after that, what is the process for PR? Human Resources Humber College. Human resources course through Humber College. Yes, there is a demand for human resources. You know why? I told you. Today we have 1 million job vacancies. तो आप जब 1 मिलियन जॉब वैकेंसी की बात करते हैं हम, तो डेफिनेटली ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्रूटमेंट इट इज अटैच्ड टू दैट। तो ह्यूमन रिसोर्सेज के जो कोर्सेज हैं उसकी वहाँ पे बहुत डिमांड है और आने वाले दिनों में ये डिमांड और भी बढ़ने वाली है। रहा सवाल बच्चे ने एक कॉलेज का नाम दिया हम्बर कॉलेज। मैं जहाँ रहता हूँ मेरे घर से 10 मिनट की ड्राइव पर हम्बर कॉलेज है। दूसरी बात, हम्बर कॉलेज के एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का मैनेजर इज माय ओन सन अशफाक खान। कभी भी व्हाट्सएप पे मुझे सवाल करना, हम्बर कॉलेज के रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी, अशफाक में जवाब। Thank you sir. Sir. Thank you so much, sir, for sharing the valuable knowledge and for your guidance. We are grateful for the time and effort you took to share your experience with us. Now, I would request Professor Mohammad Farhan Mahwa, Treasurer of MESCO Education Society, to present the vote of thanks.
Assalamu alaikum. It was indeed very enlightening to listen to Mr. Feroz Khan, who actually took us through the journey in Canada virtually. I was feeling as if I am there itself and experiencing the things over there, happening over there in Canada. He briefed us about the people of Canada, the laws over there, and how strictly they are implemented. And also, as a country, the education system, and what are the things followed, and how it is so easy. I feel now it is so easy to go to Canada under his extreme guidance. The guidance which was given by him step by step, it was actually something which made me feel that it's not so difficult as all the consultancies and the agents make you feel that. It's a simple process, and he explained us the process step by step, how it can be done and what needs to be done, and how we have to be careful in writing our SOP. And the basic bottom line was that you have to be truthful to yourself and never take the wrong path to Canada. It's not easy. If you are trying to go somehow or the other, you may never be able to land up over there. And if you get deported, it will be a permanent deportation. So we have to be careful also. So he gave us the guidance as to what care we should take and what things we should avoid also simultaneously. So it was indeed a very, very enlightening session. On behalf of Mesko Education Society, we thank you, sir, for being here and enlightening all of us and our younger generation. And I'm sure you will have some students from Mumbai and Kausa knocking at you, and obviously after 8 p.m. in India, that game you have to take, because people don't realize it, and anytime you feel and you have a query and you call up. So we have to be careful regarding that also, and I'm sure sir will always be available for us to guide us and to solve our queries and help us in the process of reaching Canada. And many more students from here will actually look forward for your guidance, sir, and hopefully they will settle down and can become the future citizens there also. I thank all the principals of the schools who have come, and the teachers and the students from different schools who have come here, the parents and the lovely audience for actually paying attention and listening, and also coming up with such wonderful questions which have clarified so many things in our mind. Thank you one and all for being present here. Thank you sir once again. On behalf of Mesko Education Society, we would like to present a small memento to Mr. Farhan Khan Sahab. It's really sweet of sir कि उन्होंने स्पेशली मैसेज दिया है सारे स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आपके पास उनके लिए कोई सवाल है तो वो 4 नवंबर को वापस जा रहे हैं कनाडा, उसके बाद आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं. Now I would request all the managing committee members of MES and our executive officer to present the memento to Mr. Feroz Khan Sahab. Now I would request you all to stand in honor of our national anthem.
ऑन करो उसको, ऑन करो। बात बंद कर, उसको बोल बंद पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे